अंतिम संस्कार से घर जाते समय दो गाड़ियों के नियंत्रण खोने से आपस में टकरा गई, जिसमें दो की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए। यह घटना उलुबेड़िया 16 नंबर नेशनल हाईवे के फकीरपाड़ा इलाके में आज सुबह हुई। जानकारी के अनुसार हावड़ा के बावरिया से लौटने के क्रम में उलुबेड़िया के फकीर इलाके में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलिंग बिजली के खंभे से टकरा गया और इस बाद दूसरी गाड़ी भी उससे टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों का नाम प्रशांत पाठक और बुलंदधारा बताया जा रहा है। पुलिस सूत्र के मुताबिक बगनान के मुरलीवार इलाके के रहने वाली एक महिला के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त हादसा हो गया। नामाज पढ़े रोडे उठेছিলাম কোনো রকম তো দুটো গাড়ি একটা গাড়ি ছিল দুটো গাড়ি কলকাতাতে ছিল সম্ভবত কলকাতা একটা ছিল বলছিল বালি থেকে দীঘার দিকে যাচ্ছিল আর একটা যাচ্ছিল বলছে সৎকার করে ওদিকে কলকাতার দিকে যায় কলকাতা থেকে ওই দীঘাগামী যাচ্ছিল তো ওই যে গাড়িটা বড় গাড়ি ছিল ওই গাড়িটা ছোট গাড়িতে কোনো ধাক্কা মারে সে ব্যারিকেডে মারার পরে ল্যাম্পপোস্টে মারে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় গাড়িটা ঘুরে পড়ে গেছিলো। এলাকার কিছু ছেলে এসে গাড়িটাকে ওখান থেকে চারজন ছিল তাদের অবস্থা মোটামুটি চারজনই এখন সম্ভবত ভালো রয়েছে। একজনের হাতটা ভেঙেছে একটা মহিলার। বড় গাড়িতে কজন ছিল? বড় গাড়িতেও চারজন ছিল সম্ভবত। এখানে দুজন স্পট ডেড আর একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, একজন কোনো রকম একটু ভালো রয়েছে। প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মাঝে মধ্যেই প্রায় হয়। গাড়িটা পাল্টি খেয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা কি দাবি রাখছেন পুলিশের কাছে? এখান থেকে স্থানীয় বাসিন্দার পুলিশের কাছে এখানে কোনো দাবি নেই, যেহেতু আমাদের সামনে একটা সিগন্যাল আছে, ওখানে ট্রাফিক গার্ড থাকে, পিছনে একটা বড় সিগন্যাল সেখানেও ট্রাফিক গার্ড থাকে, এটাই মিডিল। এরা হয়তো কোনো রকম নেশাগ্রস্ত ছিল হয়তো কিনা জানি না, যেভাবে যাচ্ছিল দুর্ঘটনা এটা। এখানে সকলে সিভিক পুলিশেরও গার্ড নেই, এটা একটা মিডিল, দুটো সিগন্যাল এটা মিডিল। সুরাজ রহমান স্যার ছিলাম, আমাদের ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আমি ফোন ঘাটছিলাম, তারপর দিকে অটোমেটিক পাল্টি গেল। তোমরা কোথা থেকে ফিরছিলে? আমরা বাউরিয়া, মানে আমার মা মারা গেছে রেনবো হসপিটালে, ওখান থেকে গিয়ে বাগনান বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বাউরিয়া চুল্লি পুড়িয়ে আসছিল। বাড়ি ফিরছিল? গাড়িতে কজন ছিল? গাড়িতে 8 জন ছিল। কী অবস্থা তাদের মধ্যে? তাদের মধ্যে 2 জন স্পট ডেড এনারা বলছেন, আমি এখন শিওর হয়নি। তুমি ঠিক আছো? আমি এই তো ঠিক আছে। কীভাবে ঘটনাটা ঘটলো চোখের সামনে? ঘটনাটা আমি ফোন ঘাটছিলাম, ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ দেখি পাল্টি গাছ। ড্রাইভার কি নেশাগ্রস্ত ছিল? ওটা ঠিক বলতে পারছি না, আমি তো ওদের গাড়িতে উঠে পড়লাম, আমি আসবো বলে এই অবস্থায় বলে মা। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। CRPF के बल पर बंगाल में वोट नहीं कराया जा सकता है। पूरे बंगाल की जनता ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वोट बैंक है। यह संदेश राज्य के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने आज पवित्र ईद की नमाज अदा करने के बाद दिया। इसके अलावा फरहाद ने आज एक बार फिर से बीजेपी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण के मकसद से बार बार घुसपैठ के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में रहने वाले सभी घुसपैठिया नहीं है। भाजपा लोगों के मन में धार्मिक ध्रुवीकरण का जहर घोलना चाहती है। इसके अलावा ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सभी को डराने के धमकाने के लिए कर रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों से अब किसी को डर नहीं है, क्योंकि लंबे समय से हो रहे इनके दुरुपयोग के कारण लोगों के लिए इनका महत्व कम हो गया है। साथ ही पवित्र ईद के मौके पर फरहाद ने सभी धर्मावलंबियों को शांति का संदेश दिया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने धार्मिक एकता का भी संदेश दिया। বাংলা ভোট ব্যাংক, সারা বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রবেশ। আবার কারা অনুপ্রবেশ? তো বিএসএফ, অমিত শাহ বিএসএফরা করাচ্ছে কিনা আমি জানি না। বাংলায় যারা আমরা থাকি, আমরা সবাই বাঙালি, আমরা সবাই বাংলার মানুষ, আমরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের হৃদয়ে আছে। ওরা ওই ধারণা নিয়ে রয়েছে অনুপ্রবেশ, এই করে ওরা ধর্মীয় সমীকরণের কথা বলছে, ধর্মীয় বিভাজনের কথা বলছে। কিন্তু আমরা বলছি হিন্দু না ওরা মুসলমানের জিজ্ঞাসা কঞ্জন। মমতা ব্যানার্জি কাণ্ডারি বলো, এরা মানুষ, সন্তান মোর মান। মমতা ব্যানার্জি বিশ্বাস করেন যে বাংলার সব মানুষ আমাদের মায়ের সন্তান। ওরা এসে এই ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা করে। 21-এও ফল পায়নি, 24-এও ফল পাবে। অমিত শাহ ভাবেন, বড় বড় কথা বলেন,
দেখবেন ভারতবর্ষের মানুষ এবার অমিত শাহের শাস্তির ভোট দেবে। শাস্তি 2 নম্বরই করে বন্ডের মাধ্যমে ইডি রেড করিয়ে আমাদের ভুয়ো কোম্পানি খুলে সেইখান থেকে ব্ল্যাক টাকাকে হোয়াইট করে বন্ডে ঢোকানোটা শাস্তি দেবে। জিএসটি করে মানুষ জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি দেবে। সে যেখানে সেখানে বিভাজন করিয়ে দাঙ্গা করানোর শাস্তি দেবে। ভারতের ঐক্যকে নষ্ট করার শাস্তি দেবে। মূল্যবৃদ্ধি হাহাকার রয়েছে তার শাস্তি দেবে। বেকারত্বের শাস্তি দেবে। অনেকগুলো শাস্তি অমিত শাহের জন্য, নরেন্দ্র মোদীদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন আর সিবিআই এর কোনো হাতটা একটু সরা দেখতে পাই না। তার কারণ ওই জুজুর ভয় একবার হয়, দুবার হয়, 3বার হয়। এখন তো সিবিআইকে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম মানুষ আর মানে না, সিবিআইকে মানে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान शरीफ रोज़ा के बाद एक खास तोहफा जो अल्लाह खुद बंदे को देता है। जी हाँ, इस तोहफे को ईद कहते हैं। 11 अप्रैल को पूरी दुनिया के साथ रानीगंज में खुशियों की ईद मनाई गई। जैसा कि ईद की नमाज रानीगंज ईदगाह में अदा किया जाता है, इसके साथ ही लोग अपने अपने मोहल्ले के मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा करते हैं। आपको बता दें कि ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से 3 बार गले मिलते हैं या अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी का इजहार करते हैं और साथ ही अपने अपने घर पर दावत करते हैं। अपने मिलने बोलने वालों को भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सेवई लच्छा खिलाकर ईद की खुशी मनाते हैं। इस मौके पर रानीगंज के बोरो 2 के चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा परशद अख्तरी खातून ने ईद के मौके पर पूरे रानीगंज वासियों को मुबारकबाद दी। रानीगंज के कई जगहों पर ईद की खुशियां देखने को मिल रही थी, जो कि पूरे 3 दिनों तक नजर आएगी। मुजम्मिल शहजादा ने कहा, रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। आखिरकार खुशियों की ईद आती है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज सहित पूरे बंगाल में सभी लोग सभी त्योहारों के धर्म को बंधनों से ऊपर उठकर मनाते हैं। ईद भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर खुशियों की ईद मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दूसरी तरफ परशद अख्तरी खातून ने भी सभी को ईद की बधाई दी और कहा कि रमज़ान के महीने के बाद खुशियों की ईद आती है, जहाँ पर लोग अल्लाह के दी हुई इस सौगात पर खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मुबारक महीना में रमज़ान के जो महीना हम लोगों के 1 महीना गुजरी है, इसमें हम लोग 1 महीना रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इसके बाद नमाज होती है हम लोग में। हम लोग पूरा सिर्फ रानीगंज शिल्पांचल और हिंदुस्तान वासियों के और पूरे विश्व को मुबारकबाद ईद के दे रहा हूँ। हम लोग अमन शांति से, ये पैगाम हमारा है, एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं, आपस में कोई शिकवा गिला नहीं रखते हैं। कभी कभार किसी से अगर नाराज़गी हो जाती है तो हम लोग ईद के दिन गला मिलकर उस शिकवा गिला को दूर कर लेते हैं। ये महीना, ये ईद के दिन भाईचारगी का दिन है, मोहब्बत का पैगाम देने का दिन है। एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में त्यौहार मनाते हैं। ये ईद हम लोग का 1 महीना का रोज़ा और तरावी पढ़ने का ये नमाज जो मिला है, ये तोहफ़ा में मिला है। रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद इस नमाज को तोहफ़ा में मिला। পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং ভারতবর্ষের মানুষকে আজকে আমাদের ঈদ মুবারকবাদ সবাইকে জানাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের মুসলিম ইসলাম ধর্মীয় অনুযায়ী যে আমাদের প্রথা, যে প্রতি বছর আদি যুগ থেকে এটা হয়ে আসছে যে প্রতি বছর মানুষ মানুষের সাথে মিলন, এই যে আমাদের আল্লাহ তাআলা উৎসব বছরে একবার উৎসব করেছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাহে রমজান, যেটা পবিত্র রমজান মাসের 1 মাস রোজা রেখে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে সমস্ত ঈদের নামাজ পড়ে সমস্ত মানুষের মঙ্গল কামনা করা হয়। এটা আমাদের ধর্মীয় প্রথা। এই বছরে একবার আমরা যেহেতু মানুষ, সকলেই মানুষ, আল্লাহ তাআলার দেন, একই রক্তে মাংস গড়া আমরা সকলেই মানুষ, এই মানুষ মানুষের মধ্যে যাতে মিলনটা থাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
सालनपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने अग्नेयास्त्र के साथ 5 युवकों को बीते बुधवार रूपनारायणपुर चीतलडंगा से गिरफ्तार किया एवं एक पिकअप वाहन जब्त किया। पुलिस की जांच अभियान के दौरान बीते बुधवार रात क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को देख पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर तो पिकअप में सवार युवकों के पास से एक बंदूक एवं 2 कारतूस बरामद हुआ, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर पिकअप को जब्त कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि वे क्षेत्र में गाय चोरी के मकसद से पहुंचे थे। गिरफ्तार आरोपी में रानीगंज थाना के सरफराज मल्लिक उर्फ गोपू, आसनसोल दक्षिण थाना के प्रेम हरिजन, आसनसोल उत्तर थाना के एमडी इकबाल उर्फ असलम खान एवं चंदन ठाकुर है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के ऊपर अन्य थाना में पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। কি জন্য এখানে জড়ো হয়েছিলেন আপনারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে? কি জন্য জড়ো হয়েছিলেন? কে কে যাচ্ছে? হ্যাঁ ওটা যাবো আপনি যাবেন না? सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। होने वाले रामनवमी में जो रानीगंज शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसी को लेकर रानीगंज थाना में एक समन्वय सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी सेंट्रल दास, एसीपी सेंट्रल धीमान कुमार मिर्धा, रानीगंज थाना आईसी विकास दत्ता, ट्रॉफिकोसी चित्तोस मंडल, रानीगंज थाना मेजो बाबू अजय बाग एवं 3 आउटपोस्ट बल्लभपुर फाड़ी आईसी शिलादित्य बैनर्जी, निमचा फाड़ी मलय दास, पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी रविंद्रनाथ दलोई एवं यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यगण भी उपस्थित थे। आसनसोल विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट श्री मनोज सराफ, संपादक तेज प्रताप सिंह, आसनसोल जिला बजरंग दल संयोजक लालू शर्मा, रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के संपादक शुभम राउत, प्रेसिडेंट मनीष शर्मा, रानीगंज बजरंग दल संयोजक संजय नाथ, अमरजीत रविदास, विशु गोराई एवं रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के 30 खंडीय कमेटी के प्रेसिडेंट एवं संपादक उपस्थित थे। इस दौरान रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के संपादक शुभम राउत ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। সত্যিকারের রামকে নিজেদের মধ্যে উজ্জীবিত মানে ভেতরের রাম। তো তার জন্য আখাড়া যে আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে, হয়তো কিছু কিছু ঘটনা বিক্ষিপ্ত হয়েছে কোনো সালে, যার জন্য আমরা অতি সতর্ক হয়ে আছি এবং যার কারণে আমরা একটু চিন্তিতও থাকি। পুলিশ প্রশাসন আবার ইলেকশন শুরু হয়ে গেছে, মডেল কোড অফ কন্ডাক্টও চালু হয়ে গেছে, যার জন্য আমাদেরকে একটু সভ্যবৃন্দ যারা এসছেন প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো আইসি সাহেব এবং মেজুবাবুকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। ধন্যবাদ জানাবো আপনাদেরকে, আপনারা এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন ধৈর্য ধরে মিটিংটার জন্য। আমি এখানে জয়েন করলাম মোরলেস 2 মাস 2.5 মাস হয়েছে। তো আমি জয়েন করেই যখন মানে আমাদের সিস্টেমের ভেতর পড়ে সেই একই ধরনের উদ্যোগ আছে, যেটা আইসি সাহেব প্রথমেই বলে দিয়েছেন। কিছু কনফিউশন মেবি হয়তো ছিল, আশা করব আজকের মিটিংয়ের পর সেই ইস্যুসগুলো থাকবে না। একটা বড় প্রোগ্রাম যখন অ্যারেঞ্জ করা হয়, আপনারা করেন এবং অর্গানাইজারদের সঙ্গে পুলিশও কিন্তু তার মধ্যে ইনভলভ হয়ে যায়, কারণ পুলিশের ওপর দায়িত্ব থাকে যে আপনাদের ওখানে এই প্রোগ্রামটা আছে, এই প্রোগ্রামে যারা কোনো ইস্যুস না হয় আপনারা দেখে নেবেন। তো আপনারা যেভাবে চিন্তাভাবনা করেন আমরাও চিন্তাভাবনা করি, আমাদের একটু অন্যরকমভাবে করি। আপনারা যে আরও পার্টিসিপেট করবেন আরও লোকজন, সেটা আপনারা দেখেন। আপনাদের এই উদ্যোগগুলো তো ডেফিনেটলি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি। পাশাপাশি আপনারা যে নাম্বারটা
আছে বা যে ওয়েতে হয়। রামনবমী যে মহোৎসব এবং র্যালি শোভাযাত্রা সেটাকে নিয়ে আজ রানিগঞ্জ থানায় আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের উদ্যোগ রানিগঞ্জ থানার ইয়েতে আজকে এখানে একটা সমন্বয় সভা হলো। কি গাইডলাইনগুলো পেলেন প্রশাসনের কাছ থেকে যদি জানান। প্রথমত সকল রানীগঞ্জবাসী এবং জেলাবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং আগাম যে বাংলা শুভ নববর্ষ আছে তারও শুভেচ্ছা। আজকে রানীগঞ্জ এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার থেকে আমাদের যে ৭ তারিখে রামনবমী এবং ১৮ তারিখে যে শোভাযাত্রা বেরোবে তার নিয়ে একটা আমাদের এখানে রানীগঞ্জ পিএসএ একটা মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে যে আমাদের 30টা কমিটি, সেই 30টা কমিটিকে নিয়ে আজ আমাদের মানে মিটিং হয়। এই মিটিংয়ে আমাদের যে রুট আছে সেই রুটের উদ্দেশ্য এবং পিসফুল্লি যে প্রতি বছর আমরা যে রামনবমী শোভাযাত্রা বার করি তার উদ্দেশ্যে আজ মিটিং রাখা হয়েছিল। আমাদের কি প্রোগ্রাম আছে এই নিয়ে এবং রামনবমীর যে প্রসেশনে কী থাকবে সেই বিষয়কে নিয়ে আজকে চর্চা হয়েছে। এবং আমরা প্রতি বছর যেভাবে রানীগঞ্জ পিএস এবং আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনার থেকে যেভাবে আমাদের প্রশাসনিক সাপোর্ট পায় সেটা পূর্ণে এখানকার রানীগঞ্জ আইসি এবং আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর এডিসিপির পক্ষ থেকে এটা আশ্বাসন দিয়েছে কি আপনার প্রতি বছর যেভাবে সুস্থ এবং শান্তভাবে যে প্রসেশন বার হয় সেভাবেই বেরোবে এবং তারপরে যেরকম হেল্প লাগবে যদি আমাদের কোনো ইনফরমেশান বা পিএসের কাছে কোনো ইনফরমেশান থাকবে সেটা শেয়ার করে আমরা সুস্থ এবং শান্তভাবে আমাদের 18 তারিখে যে শোভাযাত্রা রয়েছে শ্রাপ ভবন থেকে দুপুর 3টার সময় বেরোবে তা নিয়ে আজ চর্চা। এবারে তো মানে রাম জন্মভূমি মানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার মানে পরবর্তী মানে সাল এটা, ঠিক আছে। তো এই বছরে মানে যে ধার্মিক মহা শোভাযাত্রা বিশেষ কি নিদর্শন থাকবে এবং যেটা মানে শহরবাসী উপলব্ধি করবে বা বাইরে থেকে যারা আসবেন? বিশেষভাবে তো খুবই গর্বের বিষয়, কেন গত 500 বছর থেকে আমরা রাম মন্দির ছাড়া রামনবমী উৎসব পালন করতাম। প্রচুর রামনবমীর যে প্রসেশন হতো তার মধ্যে অনেক রকম আমরা নানা ধরনের আমাদের কার্যক্রম হতো, তার মধ্যে পয়সা খরচা হতো, কিন্তু একটা মনে দুঃখ থাকতো কি রাম ঠাকুর যে আমাদের রাম মন্দির আছে সে একটা ত্রিপালের মধ্যে আছে, কিন্তু বর্তমান এই সময় যেভাবে একটা সুন্দর এবং ভব্যভাবে এবং রাম মন্দির নয় রাষ্ট্র মন্দির নির্মাণ হয়েছে, সেখানে রাম ঠাকুর বিরাজমান আছে এবং রামনবমী প্রথম একটা রামনবমী যে পুরো রাম মন্দির নির্মাণ হওয়ার পর আমরা বেরোবো। তো সেই উদ্দেশ্য নিয়ে খালি রাম মন্দির নিয়ে নেই, রাম মন্দির ছাড়া রামায়ণ থেকে লিয়া কিছু কিছু অংশ এবার শোভাযাত্রা আকর্ষণীয় থাকবে যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিমা আছে সেই বিশেষ প্রতিমা আকর্ষণীয় এবার রানীগঞ্জের রামনবমী শোভাযাত্রা থাকবে। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম শুভম রাউত, রানীগঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 वर्षों की लंबे अंतराल पश्चात रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली के कार्यकारिणी समिति के लिए गुरुवार गहमा गहमी माहौल में मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में 2 पक्ष 2 यंग टर्क और इक्वल राइट फ्रंट आमने सामने हैं। 19 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह से ही शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। किसी भी मतदाता के मतदान स्थल पर पहुंचते ही उम्मीदवार अपना संपर्क बनाते नजर आ रहे हैं। दूर रहने वाले भी मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त विष्णु खेता ने कहा कि अंतिम समय में मतदाताओं के बूथ के अंदर अपने मोबाइल ले जाने के निर्णय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शांतिपूर्ण बहुत अच्छे से लगातार लोग आ रहे हैं। थोड़ी सी अब दोपहर की टाइम हुई है तो अब हम लोग की आशा है कि थोड़ा और मतदान बढ़े। अब तक कितने 314 बैलेट इशू हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई नहीं, बहुत शांतिपूर्ण दोनों पक्षी आए। जो डिसीजन लीजिए एकदम ठीक है, दोनों पक्षों हम लोग को मान्य है और आराम से उसी ढंग से करके चलाया गया। मतगणना कितने बजे तक हो जाएगी? मतगणना शेष 10 बजे, क्योंकि बैलेट में 40 रहेंगे तो थोड़ी काउंटिंग में समय आज लग सकता है। कितने राउंड में मतगणना होने की संभावना है? 5 राउंड। आपका परिचय? मैं विष्णु खेतान, मुख्य चुनाव आयुक्त आजी। चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रहे सतीश खेमका ने दावा किया कि उन लोगों ने 7 वर्षों में विकास का कार्य किया है। पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि विगत 7 वर्षों से हम लोगों ने क्लब के लिए जितनी सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है उसको लेकर हम पूरी तरह आश्वस्त है।
मेंबरों तक हमने अपनी बात पहुंचाई भी है और मेंबरों का भी हमें 7 वर्षों से जो सपोर्ट रहा है उसी की बदौलत हम लोगों ने ये काम कर पाए हैं। अगर मेंबरों का सपोर्ट हमारे साथ तन मन धन से न लगा रहता हो तो हम आज क्लब को इस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाते। आगामी मेंबरों का साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा और हम क्लब को बहुत आगे ले जाएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि बंगाल में हम इस बंगाल ही नहीं ईस्टर्न इंडिया के अंदर में इस क्लब को शिखर पर पहुंचा के रहेंगे। क्या लग रही है बोर्ड आपकी बन रही है? 100%। कुछ कंट्रोवर्सी विपक्ष हमेशा चाहेगा कंट्रोवर्सी करने की। उन्होंने मिथ्या झूठ को प्रचार किया, उनके पास कुछ भी विजन नहीं था, उनके पास क्लब के लिए कोई विजन नहीं था। हमने करके दिखाया और आगे का भी विजन हमारे पास है। उनके पास कोई विजन नहीं था, वो झूठा प्रचार कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। उन आरोपों का हमने खंडित किया है और जिसको कहते हैं ना कि पेपर पे सबूत हमने उसको खंडित किया है उनके आरोपों को, तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे वोटर्स बहुत जागरूक हैं, उनको पूरा पता है कि क्लब के लिए किसने क्या किया है नहीं किया है, तो वो असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। 19 सीट हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम 19 पे जीत के आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी पूरी टीम जीत रही है। हर्ष खैतान ने कहा कि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि वो ये कहने से बचते नजर आए कि उनके 2 गुट के कितने लोग इस चुनाव में जीत हासिल करने में सक्षम रहेंगे। जीत के प्रति आपकी टीम कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है, बताएं। देखिए, मतदाता धीरे धीरे बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। मतदान चल रहा, आपको ये पता है कि मतदान के अंदर जो मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो उसी अनुसार वोट करेंगे। मुझको ये लगता है कि हमारी टीम विजयी होके आएगी। 19 सीटों के लिए लड़ाई हो रही है। हाँ। आप क्या पूरी सीट जीत रहे हैं या उसमें क्या कम आने की संभावना है? तो आपने बहुत या कितने सीट आप अनुमान लगा रहे हैं? पूछ लिया है। अनुमान देखिए, अभी तो कुछ लगाना मुश्किल है। 350 ही वोट पड़े हैं मतदाताओं से। उसके बाद मिलने के बाद जिस तरह से समझ में आ रहा है, अच्छी संख्या में ही सीटें आनी चाहिए। वही इस चुनाव में एकमात्र महिला प्रत्याशी मीनू गोराई ने कहा कि एकमात्र महिला प्रत्याशी होने के नाते उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। एकमात्र महिला उम्मीदवार आप हैं। 40 के 40 कैसा लग रहा है वोट में? और बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। खूब खुशी का बात है, सही का निर्णय हो, सब कुछ सही हो और जो हो वो बहुत अच्छा के लिए हुआ है और बहुत अच्छा होगा। सदस्यों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब कोई बहुत खुश हैं कि मैं खड़ी हुई हूँ, कुछ करूँगी, ये सब उम्मीद कर रखे हैं। तो मैं नारी शक्ति के लिए कुछ करूँगी, आगे बढ़ूँगी। वही विपक्ष के उम्मीदवार मनोज केसरी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी अपनी जीत का भरोसा जताया। लग रहा है चुनाव व्यवस्था से आपको? ये चुनाव यहाँ पर जो भी हो रहा है ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है। कहीं पर से भी ऐसा नहीं लगता कि 2 प्रतिनिधि पक्ष है। देखिए, सब हम लोग अंततः सब स्पोर्ट्स असेंबली के मेंबर है। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी है कि एक इधर है तो एक इधर है। सब शाम को 5 बजे के बाद वोट खत्म हो जाएगा, सब एक साथ मिलकर बैठेंगे और जो क्लब के हित में होगा वो विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जो भी पक्ष जीते आपस में कटुता नहीं रही, द्वेष नहीं रहे और हम लोग सब एक साथ मिलकर क्लब के उन्नयन में जो भी काम होगा अपना सहभागिता और भागीदारी। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं है, ये एक संस्था का चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात एक दूसरे के साथ इस संस्था के विकास के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ की चुनावी व्यवस्था कैसी है और आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? सबसे बड़ी बात है व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, सारा सबका कॉपरेशन मिल रहा है और हमको तो 39 लोगों का साथ मिल रहा है। इसके प्रति कितने आश्वस्त हैं? काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हो रहा है, चुनाव हो रहा है, सभी भाई मिलजुल कर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। चुनावी व्यवस्था रही इस बार आपको लगातार प्रोफेशनल है। आप लोग संतुष्ट है वोटर व्यवस्था कैसी है चुनाव की? स्पोर्ट्स असेंबली में चुनाव आज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। खूब अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है, सभी वोटर मेंबर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और खूब शांतिपूर्ण ढंग से सब वोटर है। कैसी व्यवस्था है आपकी? बहुत अच्छा लगा। इसके पहले आपने चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट किया है, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कुछ अंतर? किसी प्रकार का कोई शिकायत? पहली बार आप संभवतः वोट? हाँ, पहली बार वोट दिया और अच्छा चीज़ हुआ कि वोट के हिसाब से चुनाव होगा। आपका परिचय?
गुलशन कुमार रानीगंज। तो ठीक है, दोनों तरफ से तो देख रहे बहुत ही कॉन्टेस्ट हो रहा और दो निर्दलीय खड़ा हुआ है। एक हम लोग का महेंद्र साहब है होने वाला ग्रुप का, तो हम लोग तो सब व्यवस्था कैसी है? तो गैप हो गया यार जी, इस 7 साल के बाद तो चुनाव हो रही है। हाँ, 7 साल के बाद है। मतलब व्यवस्था कैसी है? चुनाव व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार मुखर्जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिष्णुपुर के भाजपा उम्मीदवार सौमित्र खान ने भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने के विरोध और तृणमूल उपद्रवियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा विधायकों के साथ इंदास थाने का घेराव किया। भाजपा के थाना घेराव कार्यक्रम को लेकर इंदास थाना परिसर में भारी तनाव देखा गया। बीजेपी ने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। इस आरोप के सामने बिष्णुपुर के बीजेपी प्रत्याशी सौमित्र खान ने इंदास थाने का घेराव करने का आह्वान किया। आज सुबह से ही सौमित्र खान ने बीजेपी विधायक निर्मल धारा, सोनामुखी बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी और ओंडा बीजेपी विधायक अमरनाथ शाखा समेत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंदास पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार को घेर लिया। उन्होंने दावा किया कि इंदास के वर्तमान ओसी ने सत्तारूढ़ दल के लिए ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होने दिए। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हो तो थाने में शिकायत तक नहीं ली जाती। इसलिए अगर क्षेत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है तो इंदास पुलिस स्टेशन के ओसी को तुरंत बदला जाना चाहिए। ओंडा के भाजपा विधायक और बिष्णुपुर के भाजपा के संगठन जिला अध्यक्ष अमरनाथ शाखा ने भी ओसी बदलने की मांग की। दूसरी ओर तृणमूल के इंदास ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी के दावे का मजाक उड़ाने से नहीं चुके। उन्होंने दावा किया कि भारत में बीजेपी को प्रचार करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया। আমরা এখানে এসেছিলাম ওসি সাহেবকে একটু আদর করতে। মোটামুটি আমাদের যেটা কার্যকর্তারা সবাই মিলে আমরা সংগঠিত হয়ে আমাদের যেটা প্রতিবাদ জানাবার জানিয়ে গেলাম, লিখিত দিয়ে গেলাম সিআই সাহেবের কাছে এবং ওনার কাছ থেকে রিসিভ নিয়ে যে জায়গায় যাওয়ার আমাদের যাওয়া হবে এবং আমরা চাই এই ওসি সাহেব ভোটের আগেই ইন্দাস থেকে বিদায় নিক। দাদা এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন যে এলাকায় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বললেন পুলিশ যদি ওয়ারেন্ট ছাড়া বাড়িতে ঢোকে তাকে বুদ্ধি সেটা দিয়ে তাড়াতে, এটা ঠিক কি কারণ? এই তো পুলিশ অস্বীকার করছে। গত পরশুদিনে যে ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আজকে এখানে আসা, পুলিশ বলছে ওটা আমাদের পুলিশ নয়। আবার ইন্দাসে নাকি নতুন পুলিশ আবিষ্কার হয়েছে, তারা নাকি ঘরে গেছে। কি করছে তারা কি করবে? তারা তো দায় এড়িয়ে দিচ্ছে, বলছে এটা আমাদের পুলিশ নয়, এটা আমাদের মমতার পুলিশ নয়, এটা হয়তো অন্য পুলিশকে। এই বক্তব্য হুঁশিয়ারি দেখা গেল। হ্যাঁ, শেখ হামিদ তো 2021 বলে নাকি একজনকে মার্ডার করেছিল, তার নাকি নাম সিবিআই তো নাকি আছে শুনেছি। তিনি সেই সময় ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি সব জায়গায় তো আবার হুমকি দিচ্ছেন। তো সেই জন্যই কোথাও শেখ শাহজাহান আছে, কোথাও শেখ হামিদ আছে। গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন? হ্যাঁ, আমরা তো দাবি জানাবোই। আর গতকাল রাত্রিতে একজন মাইনরিটির উপরে যেভাবে গরম জল হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাকে এফআইআর পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। সে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মী, তার স্ত্রীকে যেভাবে গরম জল। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की 6ठी कक्षा की एक छात्रा ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान दिए। इस छात्रा ने कहा, मैंने अपने माता पिता से सुना है कि कैंसर पीड़ित लोगों के बाल झड़ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बाल बड़े हैं, मैं इन्हें काट कर उनकी मदद कर सकती हूँ। सोनारपुर की 6ठी कक्षा की छात्रा अस्मिता दास ने अपने बाल कैंसर पीड़ितों को दान कर दी, क्योंकि उनके बाल न होने पर उन्हें दुख होता है। इस मासूम सी लड़की ने बताया कि जब वह छोटी थी तब अपने चाचा का बाल रहित सिर अपनी आंखों के सामने देख उनसे कई बार पूछा कि उनके बाल क्यों नहीं है। उसके चाचा की कुछ साल पहले ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। नन्ही अस्मिता ने अपने पिता और माँ से सुना था कि कैंसर होने पर सिर के बाल झड़ जाते हैं। अस्मिता की मां सुमिता दास ने बताया कि अस्मिता के बाल बचपन से ही लंबे थे, वह बार बार इसे काटने पर राजी नहीं हो रही थी।
वो अपने पिता और मां से कैंसर रोगियों को बाल दान करने के बारे में जानने के बाद बाल दान करने की इच्छा जताई। हालांकि उस वक्त अस्मिता के बाल ज्यादा बड़े नहीं थे। जैसे ही उसके बाल थोड़े बड़े हो गए, अस्मिता ने उसे काट दिया। फिर अस्मिता ने कुरियर से बाल हेयर डोनेशन पश्चिम बंगाल के पते पर भेज दिए। उन्हें उम्मीद है कि उनके बालों का इस्तेमाल कैंसर रोगियों के लिए किया जाएगा। अस्मिता की मां सुमिता देवी ने पत्रकारों को बताया कि उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि वह इन्हें कटवाना नहीं चाहती। आखिरकार कैंसर मरीजों के बारे में सुनने के बाद वह बाल काटने के लिए तैयार हो गई। আমি আমার মা বাবার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাদের চুল পড়ে যায় নানা রকম ওষুধের কারণে। তো তাই জন্য ভেবেছিলাম আমার এত বড় চুল আছে, তো আমি যদি চুলটা কেটে তাদেরকে দিয়ে দিই তাদেরও তো সাহায্য হবে। তাদের মন খারাপ হয়ে যায় যে তাদের কেন চুল থাকে না, তাই জন্য তাদের একটু সাহায্য করার জন্য আমার এই চিন্তা করলাম। এটা কুরিয়ার করে দেওয়া হবে, এটা পাঠানো হবে হেয়ার ডোনেশন একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা আছে ওইখানে বাড়ি। এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিল, কি বলবেন? ওর সিদ্ধান্তটা আসলে ওর চুল খুব বড় ছিল, সে কাটানোর চেষ্টা চলছিল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হবে না। তো এইসব করে যখন ওকে আমি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বললাম যে ক্যান্সার পেশেন্টরা নানাভাবে অসুখে ভুগছে, যখন তাদের ওষুধের কারণে তাদের সব চুল পড়ে যাচ্ছে, তারা বিব্রত বোধ করছে সেই চুল পড়া অবস্থায় নিজেদেরকে দেখতে। তখন ও বললো তাহলে কি করা যায়। ও বললো, আমি তখন ওকে বলেছিলাম যে এরকম উইগ বানানো হয় ন্যাচারাল চুল দিয়ে, তো আমাদের যা যা বড় চুল আমরা যদি দিই ডোনেট করি তাহলে উইগ বানাতে সুবিধা হয়, এবার তারা সেগুলো ইউজ করতে পারে ক্যান্সার পেশেন্ট যারা। তো এটা বলার পর ও বললো মা তাহলে আমি দেবো। তাই বললাম কিন্তু এটুকু ছোট ছিল তো হবে না, আরো বাড়াতে হবে। তখন ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पूरी दुनिया के साथ साथ आज आसनसोल में भी खुशियों की ईद मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल के GT रोड के किनारे स्थित मुर्गा सोल ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर यहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु उपस्थित थे। इस मौके पर यहां आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, अब्दुल जलील एडवोकेट, समीउद्दीन पार्षद, हसरतुल्लाह, डॉक्टर जीशान इलाही, अमानुल्लाह खान, शकील अहमद आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। वो ईद का प्रोग्राम होता है, इसको बहुत अच्छा से बनाया गया। ईद खुशी का होता है और आज पूरा दुनिया में मिलन का उत्सव पालन किया जा रहा है। आरंभ से तो कल हो गया, तो आज खुशी का दिन है। मैं इनसे कहूँगा कि पूरे आसनसोल में बहुत खुशी से ईद मनाया जाए, पूरा बाजार में खुशी से ईद मनाया जाए। और हम लोग का बाजार एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाभाषी का बराबर का हक हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दी है। और कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इसको पालते हैं। आज ईद भी पालना है। इसका जो ईदगाह का जो प्रोग्राम होता है, इसका लिए हम हर साल आते हैं। जलील साहब बहुत दिन से इसको करते हैं, इसका कमेटी का तरफ से करते हैं। इसलिए फिर से उनके द्वारा मेरा तरफ से बधाई और धन्यवाद देकर समाप्त करता हूँ। जो है मिलन की जगह है और लोग जो है इसको जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे सियासी लोग और तमाम मीडिया के लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं, जिसको हमारे ईदगाह कमेटी के जाने से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश किया जाता है। ऐसा कहते हुए मैं अपने मंत्री साहब को मैं कहता हूँ वो अपने तरफ से। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
आसनसोल लोकसभा के लिए कल ही भाजपा द्वारा सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के नाम के घोषणा प्रत्याशी के रूप में की गई। अब धीरे धीरे ही सही आसनसोल लोकसभा केंद्र में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। इसमें और बढ़ोतरी करते हुए आज टीएमसी की तरफ से घोषणा की गई कि आने वाले 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आएंगे। आज पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, मंत्री मलय घटक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक सहित टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने आसनसोल के उषा ग्राम इलाके में स्थित उषा ग्राम बॉयज स्कूल मैदान का दौरा किया। इस बारे में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी 27 अप्रैल को शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में प्रचार करने आसनसोल आ रही है। आसनसोल उषा ग्राम बॉयज स्कूल मैदान में वह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उन तैयारियों का जायजा लिया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता को देखते हुए अभी से नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जनसभा में आएंगे। ডায়াসটা তাহলে এদিকে হবে এখানে ডায়াস হবে তাহলে স্যার হেলিপ্যাড পিছনটা হেলিপ্যাড তাহলে পেছনে হেলিপ্যাড সামনে ডায়াস এত কাছে হেলিপ্যাড সিএম কোথাও পাবেন এখানে ড্রেসিং করতে হবে জঙ্গলটা কেটে এটা রাস্তা করতে হবে কারণ ভিআইপি এদিক দিয়ে সোজা স্টেজে এই স্কুলটা পাশে কালকে যারা স্টেজে যারা অন ডায়াস যাবে ওখানে ওই স্কুলের মাঠটা খুলে ওকে এই যে হলুদ ইয়েটা রয়েছে না ওইখান দিয়ে সোজা একটা 4 ফুটের 5 ফুটের রাস্তা হেঁটে 10-12টা গাড়ি থাকে ইয়েটা চড়া আছে মনে হচ্ছে থাকলে হেলিপ্যাডের দায়িত্বে ঠিক আছে তো ঠিক আছে আর যদি আছে একদম 27 তারিখে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলের মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য, দেখা করার জন্য শত্রুঘ্ন সিনহার প্রচারে আসছেন। সেটা আসানসোল যে বয়েজ উষাগ্রাম বয়েজ স্কুল আছে সেই মাঠে যদি করা যায়, আমরা এটা দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এসেছিলেন এবং প্রশাসনের মানুষজন এসেছিলেন, আমরা এটা দেখতে এসেছিলাম। কত মানুষের প্ল্যান আছে, কত মানুষ জমায়েত হবে? এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে তো জনপ্লাবন, কেউ তো অঙ্ক কষে বলতে পারে না। 2500 হতে পারে, 5000 হতে পারে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बर्नपुर डेली मार्केट में एक दुकान में आग लग गई, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से दुकानदार अत्यधिक आक्रोशित हो गए। इनका कहना है कि उस दुकान में गैस सिलेंडर में गैस भरा जाता है और अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वह दुकानदार घटना स्थल से फरार हो गया। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि उनको पता नहीं कि यह काम वैध तरीके से करता है या अवैध तरीके से, लेकिन इस घटना के चलते वह लोग काफी दहशत में है। किसका वाला किसका? आपका है? अरे अभी नहीं कर रहा है। छोड़ दे, ठंडा भर दे। में आगे लगा के सिलेंडर में भरवाना, हाँ, और आपने बंद करके भाग गया। बुताने में लगे हो भैया, हम लोग बुताना कर रहे हैं, मरने का टेंडर है हम लोग के पास में। हम लोग का जान का कोई कीमत नहीं है। नहीं, उसको काहे बंद करके पहले फोटो लीजिए, मरेगा तो भी मरो हम लोग के साथ में, अपना जान दे देंगे। किसका था कैसे सिलेंडर? देखिए ना, तो बगल में दुकान है, गैस भरता है। अच्छा, वो क्या इनलीगल भरता है? जो भी भरता है बताइए, वो बंद करके भाग गया। यहाँ पे आग लगा के देखिए, हाँ, वो मेरा दुकान, ये देखिए, ये दुकान है मेरा, बगल में मेरा दुकान है। अभी आग लग जाए तो कौन जिम्मेदार होता उसका? सही बात, उसका कौन जिम्मेदार होता? हम लोग का जान चला जाता। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
केंदा एरिया के खास केंदा खटाल ग्वालापाड़ा में अखंड हरिनाम संकीर्तन के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 151 कलश के साथ महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा खटालपाड़ा शीतला मंदिर से शुरू होकर चिचुरिया मोड़ के पास केंदा कैंटीन पाड़ा पोखरा में जल भरकर पुणे शीतला मंदिर में समाप्त हुई। कलश यात्रा में यजमान के रूप में अमरजीत यादव और उनकी पत्नी आरती यादव, पंडित पवन पांडे और उनके सहयोगी संतोष पांडे, पूजा कमेटी के सचिव अरविंद यादव, सदस्य लखन यादव, विष्णु यादव, सिकारी यादव, मुकेश यादव तथा सभी पूजा कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। शीतला मंदिर जो है खास केंदा खटालपाड़ा, वहीं पर 24 घंटा का अखंड हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज से शुरुआत करेंगे। अभी तो कलश यात्रा हुआ। कितने दिन होगा? ये 24 घंटा का है। यात्रा टोटल 151 है। क्या बोले? ये मतलब खास केंदा खटालपाड़ा शीतला मंदिर से लेकर चिचुड़िया मोड़ होते हुए खास केंदा बैंक ऑफ इंडिया से एक काली मंदिर है, उधर से ही हम लोग रिटर्न फिर ये गोसाई स्थान होते हुए ये कैंटीन पाड़ा पोखर में आकर जल भरेंगे। क्या बोलना यही है कि अब हम लोग का सनातन धर्म फिर से एक बार जागरूक हुआ है। हम चाहेंगे कि ये बरकरार रहे और हमारे भाई लोग जो मतलब इतना उत्सुक हुए हैं, तो हम जैसे मुकेश भाई हैं, ठीक है, और भी सब हमारे अर्जुन भैया हैं, शिकारी भाई हैं, हम इन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध यही करेंगे कि बरकरार रहे, हमेशा इसी प्रकार ये जो हम लोग का संगठन बना रहे, हमारा हिंदुत्व जो है बना रहे। और इससे क्या होगा कि हम लोगों को आगे पीढ़ी जो है एक अच्छा जानकारी मिलेगा, अच्छा होगा। हाँ, ये तो प्रतिवर्ष होता है। पवन कुमार पांडे, मैं हरिपुर राम जानकी मंदिर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।